And sir, for your information, we have students from engineering and science also. In science, we have PG and UG both from chemistry and bioscience. That is so. Namaskar. Good morning, everyone. Today, we are privileged to have Abhishek Kapila sir, who is General Manager IMECON. That also we will understand what actually it stands for. Because Cadila we know, but this name is not clear to us. So we'll go with the first question of that only, that what it stands for. I is something, it sounds and hints, it is certainly related with or associated with our founding chairman, Indravadan sir. So that is my guess and could be, correct also in the meantime. And also, I welcome all the students and panelists. We are joined by Abhinan sir, Sumit sir, Vyas sir, and we are expecting Dean School of Science, Bharti Madam, very soon. Even Pradeep sir is going to join us from Kerala. Students, success is the one which actually brings smiles on our faces. The very word success. And not only me, everyone is bewildered that what this success stands for, because it has so many definitions, and sometimes it is said it is often subjective also. Success is the one which everyone wants to achieve. So the topic today is very, very interesting, and for which we have a very successful a professional, Mr. Abhishek Kapila. So before I invite him, I invite Abhinan sir to set the context of the webinar as a part of this turning point. Yeah, good morning to you all, and thank you, Abhishek ji, for sparing your valuable time to enrich the knowledge of our students as well as our faculty both in an important topic of management success. Success is there for everybody. A research scientist के लिए success है कि हाँ एक molecule का outcome आ गया है. He has been trying a lot. That's a success. If you look at the success of a nation, कि हाँ कितना GDP growth हुआ and how he has proceed forwarded. So that's called the success for any nation. If you look at the leaders, past में if you look at the हमने पोरस और सिकंदर की लड़ाई का देखा है तो उसके लिए सक्सेस था, लेकिन एक जगह आके उसको लगा कि भाई आगे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स नॉट द सक्सेस, एंड देन ही मूव्स अहेड with something else. Take the case of Ashoka, he also led to a life where he wanted to have a success of achieving everything in India. Then he realized the success is inherent bliss, and then he turned into a different leader altogether. That's how we remember Ashoka. The Ashoka स्तंभ का जो चिन्ह है वो आज हम उसी के लिए याद रखते हैं. So likewise the success figure changes from person to person. If you look at the success of our chairman sir, he always wished it कि मैं एक दवाई बनाऊं जो कम से कम ऐसे जगह पे पहुंच सके कि जहां कोई ना पहुंचा सके, एंड एवरीबडी इज क्योर्ड इन इंडिया, एंड इट शुड बी अफोर्डेबल ताकि कोई भी उससे मर ना सके. दैट वाज द विजन विथ विच ही स्टार्टेड, एंड फॉर हिम that was the success, and that legacy is being continued by his son Dr. Modi, and that's how we are there with this university where his legacy is continuing, where he wants that every child of India should get a better education, and that's how you see the success. So success is a different paradigm altogether. आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस वे में आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं. फॉर आवर अब्दुल कलाम सर, उनको था कि हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने, एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड दिस रिवोल्यूशन कि हाँ न्यूक्लियर पावर नेशन होगा तो आगे की कंट्रीज हमें सुनेगी. सो ऑल्सो वी वांटेड टू बी सच ए स्टॉलवर्ट कि हाँ सक्सेस के रेशियो है कि दूसरे नेशंस भी हमें सुन सके, एंड दैट्स हाउ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टुवर्ड्स दैट लीग कि हाँ इंडिया बिकम्स नॉट ओनली economically powerful but also powerful from the defense perspective, so that nearby nations they see it as a respect. So the success comes with a different nation. साधु के लिए सक्सेस है कि भाई आज अच्छा दिन चला गया है, आई प्रीच्ड विद सो मेनी थिंग्स. So there are different people, they have a different notion, and it's a broader topic, and I would like to listen to Mr. Abhishek ji for such an important topic, and all the students stick together and be focused for important topic. Thank you.
Thank you, Abhinand sir. Very well said and very aptly defined what success, how success varies from person to person and from subject to subject also. And we are joined by our Dean, School of Science, Dr. Bharti Dave. Good morning, ma'am, and welcome to the webinar. It's now time for Devarsh Andharia. He is an MSc student for the introduction of today's speaker. Devarsh, you can unmute yourself. Hello, ma'am. Yeah. May I audible? Yes, audible. Okay. Hello, everyone. Very good morning to one and all present here. I am Devarsh Andharia from MSc Semester 3, student of the microbiology. It's a great pleasure for me to have the opportunity to introduce today's speaker, Mr. Abhishek Kapila. Sir is a professional with over 21 years of experience in sales, having worked with the leading companies such as Renabix and DRL. In Cadila Pharma, he heads to the Indravadan Ambalal Modi Innovation Conclave. It's India's largest knowledge conclave on innovation and excellence in the life science and pharmaceuticals, currently present in the 151 cities across the India and 70 countries around the world. And today, sir is going to talk to us about the success. And final note, you are grateful for his presence among us today's speaker. So now I would like to welcome Abhishek, sir. Thank you so much, Devarsh. I think I am audible, right? Yes, sir. You're Yes. audible, sir. Yes, So, sir. very, interesting topic. I thank Dr. Namrata, Mr. Abhinandan as well, and now everyone who is present, that I have been given this opportunity. And मेरे को firmly लगता है it's a very big opportunity, to interact with people who are going to build the future of the nation. तो आप सब लोगों के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधे पे, और आई एम श्योर आज के सेशन जो कि एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, से हम लोग कुछ कलेक्टिव लर्निंग शेयर कर पाएंगे एक दूसरे से। जो मैंने सीखा पिछले 21 सालों में, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि वो आप सब लोगों तक पहुंचे। एंड डेफिनेटली सक्सेस का एक टॉपिक है, और सक्सेस से पहले आई एम आइकॉन की बात होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर नम्रता ने भी बोला कि आई एम आइकॉन क्या है और क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग करती है बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो आई एम आइकॉन का अगर आप फुल फॉर्म, इफ आई हैव टू टेल यू, इट इज a concept and a vision of our late, founder, the chairman, Sri Indravadan Ambalal Modi Innovation Conclave. So basically, science ka, it's a celebration of science. He firmly believed that as an organization, we can offer much more to the society. जैसे कि मैंने सुना कि उनका विजन था क्वालिटी मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन, ताकि सब लोगों तक पहुंचे, सब लोग उसका फायदा उठा पाए, एंड एवरीवन इन इंडिया शुड बी क्योर्ड बाय द मेडिसिन्स ऑफ कैडिला। उसी साइंस के इनोवेशन के लिए इस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, और ये डिपार्टमेंट का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक एक विजन है कि 151 जो एक आइडेंटिफाइड सिटीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, वहां पे कैडिला लीडरशिप पोजीशन अटेन करे। जिस भी सेगमेंट में हम प्रेजेंट हों, जिस भी थेरेपेटिक सेगमेंट में हमारी प्रेजेंस है, वहां पे हम टॉप कंपनीज के अंदर आए। और ये तभी होगा जब वहां पे जितने भी प्रेजेंट कस्टमर्स हैं वो सब कैडिला के साथ जुड़े, हमारे विजन को समझे, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम सब साथ मिलके आगे बढ़े। और डेफिनेटली विजन जो हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब का था कि कैडिला की मेडिसिन सारे लोगों तक पहुंचे, सारे माइक्रो इंटीरियर्स तक पहुंचे, सब लोग उसको यूज करें और कहीं ना कहीं इस क्वालिटी मेडिसिन का फायदा उठाएं। वो मिशन को पूरा करने में इस डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तो रही डिपार्टमेंट की बात, और सक्सेस की बात आज करनी है। तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूं कि सक्सेस क्या है, आफ्टर 21 years ऑफ इन्वेस्टिंग माई टाइम इनटू दिस सेक्टर। तो सक्सेस इज वन थिंग दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एवरीवन। जैसे मेरे लिए सक्सेस इज इट्स वेरी सिंपल। हर दिन के मेरे अपने कुछ टास्क होते हैं जो मैं सोच कर आता हूं कि मैं आज ये करूंगा, और एंड ऑफ द डे मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं कि मैंने कौन कौन से काम अच्छी तरीके से करे जो मैंने अपने लिए चुने थे, और अगर मैं सक्सेसफुल हूं उस काम में तो दैट मीन्स वो दिन बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मेरा मैसेज आप सब लोगों को यही है कि वन डे एट अ टाइम देखिए, क्योंकि आज का दिन, आज का पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का पल किसी ने देखा नहीं है, और जो बीत गया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
बट यस, जो आज हम कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए अगर मैं अपने सक्सेस मंत्र को डिफाइन करूंगा तो इट इज वन डे एट अ टाइम। जैसे आज भी मैं आप सब लोगों से मिल रहा हूं, तो सवेरे सवेरे में आया था तो मैंने अपने 5-6 काम लिखे कि आज की इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, आज क्या अचीव करना है कैडिला के लिए। और कहीं ना कहीं आज रात तक आज रात तक मैं चाहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेहनत करके वो सारे काम आज पूरे हों, सो दैट रात में सोने से पहले एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा मेरे अंदर कि मैंने आज कुछ अचीव करा। तो सक्सेस वही है। और मैं समझता हूँ जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं दिल में, कई बार क्लैरिटी की कमी भी होती है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो होता है, विजन होता है कि मुझे लाइफ में अच्छा करना है, बट कैसे करना है, क्या करना है, कहीं ना कहीं ये सवाल कभी कभी दिल में रहते हैं। और ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ भी सोचने का या घबराने की बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। और जैसे जैसे जिंदगी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे क्लैरिटी और आती रहती है कि हमें क्या करना है और हमारा लार्जर पर्पस क्या है। सो सक्सेस के लिए एक ही मूल मंत्र है, दैट इज एफर्ट। एफर्ट और मेहनत, दीज आर द ओनली टू थिंग्स जो आप अपने एंड से 100% इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम लोग सब मिलके मेहनत करें फॉर वॉट एवर टास्क वी डिसाइड, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि वो काम होता है। देयर इज नो टर्निंग बैक। सक्सेस इज डेडिकेशन से काम करें, क्लियर विजन से काम करें और मेहनत करें। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी काम होता है। और डेडिकेशन चाहिए, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए उस काम को करने के लिए। तो सक्सेस को एक लाइन में डिफाइन करना तो मुश्किल है, बट हाँ, अगर हम मेहनत से किसी चूजन काम को करें, प्री डिसाइडेड काम को मेहनत से करें और उस विजन को पूरा करें, तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। दैट इज व्हाट आई फर्मली अंडरस्टैंड इन वॉट एवर आई हैव डन थ्रू आउट माई लाइफ। जो भी असाइनमेंट्स मैंने हैंडल करे उसमें बहुत मेहनत और बहुत क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब आप एक लार्जर टीम को देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो समझ है या आपका जो विजन है वो नीचे के लोग भी समझें, क्योंकि एक अकेला आदमी एक काम को पूरा नहीं कर सकता जब विजन बड़ा हो। और आप लोग भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे तो आपको भी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। और टीम ही सक्सेस है, लोग ही सक्सेस है। कोई भी कंपनी लोगों से डिफाइन होती है। जैसे कैडिला फील्ड के अंदर वो कलीग्स हैं जो कैडिला को डेली रिप्रेजेंट करते हैं, वही कैडिला है वहां पे। विजन भले ही चेयरमैन साहब ने विजन हम सबको दिया है और हम सबको उनको पूरा करना है, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फील्ड में दीज आर द कलीग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कैडिला को, और वही कैडिला है। तो लार्जर अगर आपको समय के साथ आगे बढ़ना है तो आपको अपना विजन अपने लोगों के साथ शेयर करना होगा और उन सबको एजुकेट करना होगा कि वो शिद्दत से, मेहनत से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मेहनत करें, ताकि कलेक्टिवली एज अ टीम वी आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस मंत्र यही है, आई अंडरस्टैंड, एंड आई कैन सी प्रदीप आल्सो हु इज पार्ट ऑफ नाउ द मीटिंग। यस, तो थैंक यू सर। आपने एक तो आई एम आइकॉन का भी आपने डेफिनेशन बताया और आपने सक्सेस का भी डेफिनेशन बताया कि व्हाट सक्सेस स्टैंड्स फॉर यू। बहुत ही अच्छा बताया कि मेहनत, शिद्दत। तो मुझे लगता है कभी कभी कि मेहनत और शिद्दत ना हो तो फिर इंसान क्या हो, मतलब इसके अलावा और क्या, मतलब absolutely. देव देव आलसी पुकारे वाला तो नहीं होना चाहिए। सो नाउ आई हैंड ओवर द चांस टू प्रदीप सर who has joined. Welcome sir and good morning Pradeep sir. So मैं अब आपको चार्ज देती हूँ कि you take it forward and then we'll come back together. We would like to listen. Thank you sir. So extremely sorry, was delayed because we were having the internal review meeting with OP sir. See, we every week we have the meeting of L&D and HR review, which our OP sir. So I was just with that. So the moment I finished, immediately I'm here. So good morning, Dr. Vyas. Good morning, Dr. Bharati, Mr. Abhinan, Dr. Namrata, and very good morning to beloved Abhishek sir. So I'm very happy to see you again, sir. On that day, we could not listen to you. So we missed that opportunity. So sir, मैंने बोला कि सर हम छोड़ेंगे नहीं और जो अधूरी कहानी है हम उसको पूरी करके रहेंगे। और सर एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत जबरदस्त टाइम चल रहा है टू ऑल दी पैनलिस्ट। आई एम आइकॉन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा वो चीज है कि मैं बोल नहीं सकता, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता एक्चुअली।
वो हमारे लिए एक छोटा सा शब्द है, इंद्रवदन अंबालाल मोदी इनोवेशन कॉन्क्लेव, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट है, या जो लोगों की मेहनत है, जो अभी शुरू होगा, जिसका कल्मिनेशन नवंबर या उसके बाद दिखाई देगा, तो वो हमारे लिए एक छोटी सी, मैं तो उसको नंबर्स में बोल दूंगा कि भाई 151 सिटीज हैं या इतने हमने कॉन्फ्रेंसेस करी, ये स्पीकर बोला है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है, जो मतलब जो काम होता है, दैट इज इसके लिए सर अभी एकदम बिजी है। सर ने पहले ही बोल दिया था कि यही समय है हमारे पास, नहीं तो फिर एक बार वो IMI कॉन का शुरू हो जाएगा। एंड एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग, आई थिंक ही वाज इन श्रीनगर, करेक्ट सर? यस यस तो यस। आप मतलब आप तो एकदम ऐसी जगह पे थे कि जहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी, फोन भी जैम हो सकता है, वो सब था। उस इश्यूज से फिर यहाँ पे वापस आना, इट्स रियली, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस थिंग। एंड सर सक्सेस के बारे में आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं सर। मेरा जो मन में थॉट आता है, जब जो सबके जो सारे ऑडियंस के मन में आ रहा होगा, कोई MBA कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई माइक्रोबायोलॉजी से कर रहा है, तो सबके मन में थॉट होता है कि ठीक है, हमको अच्छा स्कोर लाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इसके बाद क्या? तो आपके मन में भी थॉट रहा होगा जब आपने आपका MBA किया होगा या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा कि अब क्या? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास उस टाइम नहीं था, बट यस फीलिंग ये थी, क्योंकि जब भी आप कॉलेज कर रहे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक एम रहता है लाइफ में कि आगे क्या करना है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता नहीं, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, एंड पढ़ाई लिखाई का बहुत रेलेवेंस है, राइट। तो यस, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में भी ये था कि आगे क्या करूंगा, एंड आई डिड माई BBA एंड MBA। तो मैनेजमेंट कोर्स से करता था, तो कहीं ना कहीं यही था कि कभी ना कभी लाइफ में आगे जाके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट पोजीशन को हैंडल करना है, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होना है। बट लाइफ कभी भी टॉप से शुरू नहीं होती है, लाइफ हमेशा नीचे से शुरू होती है, मेहनत का सफर होता है। तो मेरे एक मार्केटिंग टीचर थे, मैं उनका आज नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि हम आज जो भी हैं, मैं आज जो भी हूँ, उसमें उन टीचर्स की मेहनत, गाइडेंस, आशीर्वाद, बहुत मेहनत होती है किसी बच्चे को आगे बढ़ाने में। और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो इस फोरम में मैं डेफिनेटली एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी की लाइफ शेप अप करने के लिए। तो मेरी लाइफ में शेप अप करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनमें से एक का जिक्र मैं कर रहा हूँ, आदित्य, डॉक्टर VS कैप्रिहन। तो वो मेरे मार्केटिंग के टीचर थे, गुरु थे। और उस जमाने में, आज से 22-23 साल पहले, जो रिश्ता होता था गुरु और शिष्य का, वो बहुत ही एक मतलब डेडिकेशन और बहुत ही रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता था। आज भी बहुत है, बट उस जमाने में मतलब हम डरते भी थे, बहुत डर लगता था कुछ सवाल पूछने में, इतना नहीं फ्री होके बात कर पाते थे। तो उस जमाने में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे अंदर जब मेरा कॉलेज के लास्ट दिन थे और मुझे लगता था प्लेसमेंट होगा, तो मैं एक दिन उनके पास गया और कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाई मैंने कि मैं उनसे सवाल पूछूं कि भाई लाइफ में क्या आगे करना है, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, एंड हाउ थिंग्स विल हैपन। तो उन्होंने मुझसे बहुत ही सिंपल बात कही, और आज मैं उस बात को आज भी फॉलो करता हूं कि अगर आप सही डायरेक्शन में पूरे दिल से मेहनत करेंगे, तो कोई भी काम, जो भी काम आपको मिलेगा, आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। और वो सीख मैं आज भी कंटिन्यू करता हूँ, और अभी भी मेरी उनसे बात होती है। आई एम वेरी एक्टिव उनसे अभी भी, हालांकि वो रिटायर हो गए अब, बट कहीं ना कहीं बातचीत, कभी दिल में ऐसा लगता है कि भाई अगर आगे का देखना है तो डेफिनेटली गाइडेंस आज भी उनसे मिलती है। और मैं यही मैसेज आप सबको देना चाहूंगा कि बहुत संशय या बहुत शक या बहुत सारे थॉट्स दिल में मत रखें। बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर। आगे आने वाला रास्ता जो भी होगा, जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर करियर, अगर हम डेडिकेशन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि कई बार लाइफ में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वो रास्ता हमें नहीं मिलता है, और जो हम नहीं सोचते वो हमें मिल जाता है लाइफ में। तो आइडिया ये है, यही लाइफ है, जो नहीं सोचते जो मिल जाए उसी को निभाना, उसी के संदर्भ मेहनत करना और उसी में एक्सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज द थॉट। और मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, बी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स। अपनी मेहनत पे ध्यान दें और क्लैरिटी रखें कि लाइफ में क्या करना है। हो सकता है लाइफ के अंदर कुछ और चीजें हो हमारे लिए स्टोर के लिए, बट जब हम सफर तय करते हैं तो हमें आगे जाके रियलाइज होता है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ।
और हमने अच्छा किया। दैट्स ऑल। सर इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जी क्योंकि जैसा आपने बोला कि हर बार हम प्रोफेशन चूज नहीं करते हैं, कई बार प्रोफेशन भी हमको चूज कर लेता है। तो ये IM ICON आपके मन में तो कभी भी नहीं होगा जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या MBA कर रहे थे, तो ये दूर दूर तक के मन में हम लोग सोचा भी नहीं ऐसा कोई नाम हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। बट सर साथ में सफलताएं तो आती हैं लेकिन असफलताएं भी उतनी ही आती हैं, क्योंकि सबने वो समय देखा है कि जब बहुत, या आपको कुछ ऐसा याद आता है कि बहुत खतरनाक है, अभी ऐसा लगा कि अब क्या, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, ये लगे कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, अभी हो गया है, तो अभी क्या करूं आगे में। राइट। तो आज आप सारा सच मुझसे सुन लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट यस, जब आपने ये बात कही तो मुझे याद आता है मेरी पहली जॉब, मैं रेनबैक्सी, सिप्ला के बाद मैंने रेनबैक्सी में शिफ्ट करा। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सफर तय करते हैं तो एक आत्मविश्वास आ जाता है आपके अंदर कि मैं कर सकता हूँ। तो आत्मविश्वास जब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है तब बड़ी दिक्कत देता है। तो ये चीज मैंने सीखी। तो मेरा पहला असाइनमेंट था रेनबैक्सी में, मुझे एक टेरिटरी की सेल्स को सुधारने का मुझे चार्ज दिया गया था और मैंने उस काम को शुरू करा। बट कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास था वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हुआ और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई उस सफर के दौरान जो नहीं होनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे होते तो आप एहसास नहीं कर पाते आप क्या गलत कर रहे हैं। एंड वही लाइफ आपको सिखाती है, वही तजुर्बा, वही एक्सपीरियंस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे भी वो एक्सपीरियंस हुआ और मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सब अच्छा हो रहा। और एंड में एक दिन मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब आए और एक दिन रिव्यू हुआ। तो रिव्यू के दौरान मैं जो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आज बहुत शाबाशी मिलने वाली है मेरे को, वो दिन बहुत अच्छा नहीं बीता और वो दिन मुझे आज भी क्लियरली याद है। लखनऊ में मीटिंग थी और जिस होटल में थी, सवेरे 9 से शाम 6 बजे तक रिव्यू चला और बातचीत हुई और कहीं ना कहीं फैक्ट बेस्ड बात हुई। और शाम में मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में नहीं था। और कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस मेरे माइंड में प्ले कर गया, यस आई कैन डू इट। तो मेरी लर्निंग बड़ी उससे स्ट्रांग थी कि जो भी काम करना है पैरामीटर ड्रिवन काम करना चाहिए। बिकॉज हर जगह पैरामीटर से इवैल्यूएशन होता है। जैसे हम पढ़ते भी हैं तो पढ़ाई में भी सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर इवैल्यूएशन होता है या सब्जेक्ट की नॉलेज के ऊपर हमारा इवैल्यूएशन होता है, या फिर अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हर जगह कोई ना कोई पैरामीटर होता है इवैल्यूएशन का। तो पैरामीटर ड्रिवन काम अगर हम करेंगे, अगर हमें क्लैरिटी होगा तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा। बट यस, वो दिन नहीं भूलता कि जिस दिन मुझे बहुत ही हार्ड लर्निंग मिली थी कि लाइफ में कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। सो मेरा एक सजेशन है, वी शुड ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड येट एट द सेम टाइम वी शुड बी कॉशियस कि जब हमें कोई भी काम सौंपा जाता है उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तो कहीं ना कहीं आप ही को मिलके वो काम देखना है और बड़ा ही समझ से उस काम को फॉलो करना है पैरामीटर्स के ऊपर। ये मैंने सीखा उस दिन और आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। और मैं ध्यान रखता हूँ कि पैरामीटर्स का इवैल्यूएशन और उसी का आउटपुट देखा जाए। वंडरफुल। आई थिंक जैसा आपने बोला कि जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन थिंकिंग कि व्हाट कैन बी गुड और व्हाट कैन बी बैड, और हैविंग अ होलिस्टिक फीलिंग अबाउट समथिंग। अगर हमको ये मन में आता है कि किन पैरामीटर्स पे हमने अच्छा किया है, किन पे हम और अच्छा कर सकते हैं, अगर वो हमें खुद का एक डिप्स्टिक खुद का करते हैं रादर देन कोई हमको बताए, तो ये शायद सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरे खुद के साथ लखनऊ में सर सेम जगह हुआ था कि हमको बोल दिया गया आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, हम नए नए थे सेल्स में। तो बट हमारे मन में सर उस दिन ये था कि हम लोग जब ट्रेन में बैठ के घर आ रहे थे, मेरा घर कानपुर में था, तो हमारे मन में ये विचार आता कि सर झुका के नहीं जाऊंगा, इस नोट पे तो मैं नहीं छोड़ूंगा जिस दिन मैं परफॉर्म कर दूंगा, जिस दिन लोग बोलेंगे कि यार अच्छा आदमी था। तो कहीं मेरे अंदर वो है कि वो आत्मसम्मान था कि नहीं, मेरे को इस नोट पे सर झुका के नहीं जाना है, मेरे को जाना है तो उस नोट पे जाना है सर उठा के कि हाँ भाई आपने अच्छा किया और करके जाइए। तो हम लोगों ने अपनी जिंदगी हराम कर दी थी। सर सिमिलरली आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि होता है हमारे आपके जीवन में भी कुछ बहुत कठिन ऑब्स्टेकल्स आए होंगे या कुछ बहुत कठिन टास्क आए होंगे, सो कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप कौन से टास्क थे और आपने उनके लिए क्या किया था। तो चलिए मैं रिसेंट आपको बताता हूँ। देखिए ऑब्स्टेकल तो हर दिन आते हैं
बट जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बोला कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो कभी आपने नहीं सोचा होगा कि आई एम आइकॉन या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप डील करेंगे। तो देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और जब मैं कैडिला में आया तो उससे पहले मैंने डिवीजन हैंडल करे थे। डिवीजन मतलब कि एक ब्रांड पोर्टफोलियो होता है, एक सेट बिजनेस होता है और एक सेट कस्टमर बेस होता है। तो आपको सब कुछ आइडिया होता है कि भाई इस डोमेन के अंदर आपको, इस पैरामीटर के अंदर आपको काम करना है। जब आई एम आइकॉन का ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया और जब मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है ये। क्योंकि सारे डिविजन्स को उन शहरों के अंदर देखना, इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए, जब भी किसी चीज का आपको तजुर्बा ना हो तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर उसको बिगिन करते हैं। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर थी कि बिजनेस कैसे होता है, क्या पैरामीटर्स उसके अंदर करने हैं। बट एक शहर के अंदर सारे डिविजन्स को परफॉर्म कराना, इट वाज लाइक अ सीईओ जॉब। जैसे हर स्टेट का एक सीईओ होता है, उस तरीके का एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करना था। और शुरुआत में 5-6 महीने इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी। मतलब 20 साल के तजुर्बे के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अभी शायद मेरा पहला दिन ही है जॉब में और बहुत कुछ सीखने को बाकी है। क्योंकि आपको पैरामीटर डिसाइड करने थे, आपको अपने लिए प्लेइंग फील्ड डिसाइड करना था कि किस तरीके से डिपार्टमेंट आगे जाएगा। और उस दौरान डेफिनेटली कुछ सक्सेस आई और कुछ डेफिनेटली फेलियर्स भी साथ में रहे, जिनसे मैंने लर्न किया। बट यस, पहले 5-6 महीने काफी मेहनत का दौर रहा। और अभी भी आप, जैसे आप कहते हैं हर साल ये मेगा इवेंट्स होते हैं, तो सिर्फ इवेंट नहीं है ये बेसिकली कैडिला का मैसेज है जो हम हर जगह स्प्रेड करते हैं। और इसमें हम बड़े बड़े कस्टमर्स को साथ में लाते हैं, जिनको लाना इतना आसान नहीं है जब तक कि वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में स्टैब्लिश नहीं होता। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो पहले 6 महीने काफी उतार चढ़ाव का सफर रहा कैडिला के अंदर। और लर्निंग रही कि लाइफ फुल सर्कल में आती है और लाइफ हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड वी शुड नेवर बी अफ्रेड। हमें कभी डर नहीं लगना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और क्लैरिटी रखेंगे, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। दैट्स हाउ। प्रदीप, आप म्यूट पे हैं शायद प्रदीप, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, sir. So once I speak, I always go on mute because I'm sitting in an office. Okay. So where other disturbances can be there. So sir, ये हो गया IM आइकॉन। फिर दूसरा हमारा एक बहुत बहुत बड़ा, मेरा खुद का भी बहुत बड़ा नाम है डॉकएक्सा। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे कि आज हम सब देखिए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। और जब हम लोग पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। आज से 22-23-24 साल पहले मुझे याद है, कंप्यूटर रूम में जब हम जाते थे तो जूते बाहर उतार के जाते थे और एसी रूम होता था। तो वो अलग कॉन्सेप्ट था, अलग जमाना था। आज तो घर में सबके पास लैपटॉप है। तो डॉकएक्सा बेसिकली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका एक सपना है कि कैडिला शुड बी डिजिटली एक्लेम्ड कंपनी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल मार्केटिंग में कैडिला को फोर फ्रंट पे होना चाहिए। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट डॉकएक्सा का आया। डॉकएक्सा बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने डेवलप कराया फॉर अ वर्चुअल कंसल्टेशन। जैसे आज पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास खुद दिखाने, और बीच में पैंडेमिक आया, कोविड आया, तो कहीं ना कहीं ऐसा दौर आ गया कि पेशेंट बाहर नहीं निकल सकता था, बट कहीं ना कहीं उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। तो ये ऐप डेवलप कराया और इस पे हम लोगों ने, वर्चुअल कंसल्टेशन ऐप है जिसमें पेशेंट वर्चुअली थ्रू द ऐप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। और 45,000 प्लस डॉक्टर्स को हमने रजिस्टर करा इसके ऊपर, इंडिया के टॉप कस्टमर्स को, और 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट को फायदा पहुंचाया। तो बेसिकली कैडिला का प्लेटफॉर्म, कैडिला का जो कोर मैसेज है इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल कनेक्ट एंड सर्विंग द सोसाइटी एट लार्ज, वो डॉकएक्सा के थ्रू हमने पूरा करा। और अभी भी उसको कर रहे हैं, अभी भी हम इसको रीच आउट कर रहे हैं। और पैंडेमिक के दौरान, आधे दूसरे मतलब खराब समय के दौरान, ये बहुत ही अच्छा कारगर मीडियम साबित हो रहा है फॉर रीचिंग आउट टू पेशेंट्स। सो दिस इज बेसिकली डॉकएक्सा। और ये नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एस्टेब्लिश करा है कैडिला के लिए, और कैडिला से डेफिनेटली पेशेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है इससे। As the name says, sir, doc and exa. So बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में। दिस फॉर द पैनलिस्ट, इसका नाम ही इतना यूनिक है। It is coming from doc and exa. So doc is for doctors and exa is for exabyte, which is the super storing facility, or which is the super cloud storage which is being given by this unique app.
So somehow it has also been very, very close to my heart. I always keep on talking about this. Creating a virtual clinic, sitting at your place when everyone is having a risk and everyone is afraid of moving out. So creating this kind of app itself was a great success, sir, for the company like Cadila. But sir, again, to me, the question comes because we know the capability and the the technical orientation of our people. So I'm sure this challenge must have come. How to convince our people, or how to train, or there can be many things which must have undergone before making it or taking it to 45,000 doctors, sir. So please tell us something about it. तो देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे लिए वही सिंपल है, किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और एंड रिजल्ट क्या होगा। तो एंड रिजल्ट आपने बताया 45,000 डॉक्टर्स तक पहुंचना। बट हाँ, हर दिन डेफिनेटली वी स्टार्टेड विद बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐप कैसे डेवलप होगा। पहला टेक्निकल टीम के साथ इंटरेक्शन हुआ, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था, जब ये ऐप तैयार हो गया तो अपनी फील्ड फोर्स को समझाना, और इसमें ट्रेनिंग टीम ने और हम लोगों ने मिलकर काफ़ी, अभी भी एफर्ट्स चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी जितने भी नए लोग आते हैं उन सबको ये पूरा समझाया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। और हम लोग कई रिफ्रेशर प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, बिकॉज दिस इज अबाउट द स्किल अपग्रेडेशन। और जब भी कोई नया स्किल आप सीखते हैं तो उसको आपको 2-4 बार रिफ्रेश करना होता है, तभी आप समझते हैं। और तीसरा था हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब तक आप खुद चला के नहीं देखेंगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगा। तो तीसरा, हम लोग लाइव डेमो सेशंस के अलावा वी एजुकेटेड द टीम्स, वी एजुकेटेड द फील्ड, ऑल द 3,000 प्लस पीपल इन कोलैबोरेशन विद द ट्रेनिंग टीम, कि कैसे इसको सीखा जाए, कैसे इसको चलाया जाए। और ये 3 महीने तक ये एक्सरसाइज चलती रही, और 3 महीने के बाद फाइनली हमें लगा कि अब इसको रोल आउट करना चाहिए। और इसमें कुछ स्पेशलाइज लोग थे हर स्टेट में जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे हमारे एंड से, और उनका काम एक ही था कि वो डॉक्टर से जाके फीडबैक लें, कन्विंस करें, सक्सेस स्टोरीज को टीम में बताएं, और टीम को लगातार ऑन द जॉब कोचिंग भी दें, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज है, कहीं ना कहीं घबराहट भी होती है अंदर कि कस्टमर ने अगर कुछ पूछ लिया और नहीं बता पाए तो क्या होगा। तो ये लोग उस पूरे डोमेन को मैनेज करते थे। और आज 1.5 साल बाद अभी मैं आपसे कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टूड, लर्नड एंड आर एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, एंड दे आर सीइंग द एडवांटेजेस एज वेल। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे काम कर करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज ये लेवल है कि पीपल आर सेल्फ रिलायंट, और वो अपने तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। दैट इज व्हाट द सक्सेस इज। Sir, whenever I understood DocExa, so this question is always for everyone कि वाइफ मी, मेरा हमेशा सिद्धांत होता है, मैं लड़कों को भी बोलता हूँ या ट्रेनिंग्स को भी बोलता हूँ या हर जगह बोलता हूँ, वाइफ मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप DocExa को समझ रहे हो तो ये तीनों लोग के लिए वाइफ मी एप्लीकेबल है, डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए और हमारे फील्ड पीपल के लिए। सो ये मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि डॉक्टर के लिए इसमें क्या है या पेशेंट के लिए क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, राइट। तो जैसा उसमें हुआ था कि डॉक्टर्स वर ऑल्सो अफ्रेड, वो क्लिनिक नहीं खोलते थे, पेशेंट्स वर ऑल्सो अफ्रेड। और ये सर हमको DocExa आने के बाद ही पता चला कि शायद हर एक कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। शायद मेजॉरिटी ऑफ कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर सिर्फ वीडियो कॉलिंग करके या सिम्टम जान के भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको वाकई टच एंड फील करने की जरूरत नहीं है। ये शायद हमको भी DocExa आने के बाद एक बड़ी सीख मिली कि पहले हमको ऐसा लगता था कि जब तक डॉक्टर साहब हाथ में वो नब्ज नहीं चेक करेंगे या बीपी नहीं देखेंगे स्टेथोस्कोप में, डॉक्टर साहब ने कान में स्टेथोस्कोप लगाया भी है कि नहीं, कई बार तो वो भी होता था कि आई हैड अ डॉक्टर त्रिलोचन सिंह, तो कई बार कान में भी स्टेथोस्कोप नहीं लगाते थे और ऐसे ही चेक कर लेते थे। तो मैं बोलता था बोले ठीक है यार, तो वैसा भी साइकोलॉजिकली है पेशेंट के लिए। सो वही ये सब DocExa आने के बाद पता चला कि यार मतलब हर एक केस में डॉक्टर को पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज थी सर इसमें कि सब कुछ ऑनलाइन था, मतलब जैसे प्रिस्क्रिप्शन है तो जैसे आप नेटमेट्स में या उस समय आप दवाइयाँ मंगाना चाहते हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, अदरवाइज आपकी वो नहीं होगी। इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही किया हुआ है, डला हुआ है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था DocExa का। तो समझ मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा लड़कों को बोलता हूँ कि जाओ, एक कंपनी ने तुमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और इसको यूज करो।
ये साल सर तो अभी थोड़ा सा जल्दी है पूछना, बट फिर भी ये साल हम IMICon उतने ही जगह पे करने वाले हैं या कुछ सिटीज बढ़ाएंगे? नहीं, अभी तो उसी शहरों उन्हीं 151 में हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच हैज टू बी डन। अभी भी जो लीडरशिप पोजीशन हम अटेन करना चाहते हैं उसमें भी सफर जारी है, एंड आई एम श्योर दिस ईयर IMICon करने से कहीं ना कहीं हम उस सपने और उस मिशन के पास पहुंचेंगे। So we will be doing in the same set of cities as of this year. कुछ थेरेपीज भी बढ़ाएंगे इस बार? थेरेपीज नॉर्मली वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी थेरेपीज जो हम लोग करते हैं, चाहे गायनेक हो, चाहे ऑर्थो हो, चाहे गैस्ट्रो हो। डर्मा हम लोगों ने लास्ट ईयर ऐड किया था एज ए स्पेशलिटी, हम उसी स्पेशलिटी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ ऑन्को और ऑन्कोलॉजी एंड CNS, ये 2 स्पेशलिटीज रहती हैं जो अभी भी कंसिडरेशन के अंडर है, बट एज ऑफ नाउ वो जो हमारी 7 डिसाइडेड स्पेशलिटीज हैं जिसमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग फोकस करते हैं, अभी उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। सर एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी रिगार्डिंग दिस कोविड दिस थिंग, सो आई एम श्योर कि हमारे काफी सारे टॉपिक्स कोविड को ध्यान में रख के इन दिस राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड वो तो रहेंगे ही। जैसे डर्मा है सर, तो शायद हम व्हाइट फंगस या पोसाकोनाजोल के बारे में भी कुछ प्लान करेंगे। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और मेडिकल टीम इसके ऊपर ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड टॉपिक्स भी उसी हिसाब से हैं कि जो लेटेस्ट बातचीत है या जो लेटेस्ट डिस्कशन है आज की डेट में अमंग पीपल, उसको हम लोग आगे लेके जाएं और उसमें क्या इनोवेशन हुआ है, बिकॉज दिस इज अबाउट इनोवेशन, सेलिब्रेटिंग साइंस एंड इनोवेशन, कैडिला का कोर मैसेज है। तो क्या इनोवेशन हुआ है जिससे लोगों तक इसका एडवांटेज पहुंचेगा, वो डिस्कस करेंगे इस बार IMICon फॉर श्योर। Thank you, sir. I think this is for the panelists and all the audience. Cadila was one of the pioneer in bringing the posaconazole, which once some understood to be very lethal. Actually, the consequences of COVID. Many people were survived from COVID, but they died. And few days back, if you go in the April, so this was creating kind of rampage when everyone was dying because of this. So Cadila was one of the first company to launch PosaCAD. The brand name goes like PosaCAD, which is the brand of posaconazole, which has been approved therapy for white fungus. This for this thing. So Cadila, in that sense, is creating now a lot of new initiatives. Sir, again IMICon पे आते हैं क्योंकि जिनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, श्री इंद्रवदन अंबालाल मोदी, मेडिसिन मैन ऑफ कंट्री, वो itself it gives lot of goosebumps. So वो वहां से लेके जाना, और जो उनका सपना था कि we will drive the innovation yet quality affordable medication and with innovation, तो जो उनका खुद का विजन था, आई थिंक ये IMICon के थ्रू बहुत अच्छी तरह से हम वो देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और शायद इसमें कहीं हम वो फाइनेंशियल या उससे नहीं करते हैं कई बार। हमारा एक जो करने का जो मकसद था ओरिजिनली, कि जो डॉक्टर एजुकेशन विच इज द एरिया विच स्टिल नीड टू बी एड्रेस एंड विच नीड टू बी एड्रेस कंटिन्यूअसली, आई थिंक वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं है ही। तो कई बार आता है सवाल कि सिर्फ फाइनेंशियल पर्पज से कर रहे हैं या इसके पीछे हमारा कोई अदर ऑब्जेक्टिव है, जो सपना मोदी साहब ने देखा था, इंद्रवदन अंबालाल साहब। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इस प्रोजेक्ट का, ये बहुत एक व्हाट यू कैन से बेसिक एसेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेसिक। अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री में जो फार्मा कंपनीज का रोल है, वो रोल है कि हम नए नए मेडिसिन लाएं जिनकी जरूरत है रियली आज की डेट में, और कहीं ना कहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी को एजुकेट करें। वी आर पार्टनर्स विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी, विद द डॉक्टर्स, फॉर रीचिंग आउट एंड सर्विंग टू द पेशेंट्स एट लार्ज। और एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैडिला का, और स्पेशली लेट फाउंडर साहब का भी यही विजन था कि कैडिला की दवाई हर लोग तक पहुंचे, और ऐसी दवाई जिसकी जरूरत हो। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला, और IMICon इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साइंस का मैसेज साइंटिफिक लोगों तक पहुंचता है कहीं ना कहीं भी। जैसे आपने अभी बोला PosaCAD हम लोगों ने लॉन्च करा, तो डेफिनेटली ये भी उसी के तहत हुआ, ताकि सही दवाई जो कि वाकई में आज की डेट में जरूरत है, नीडी लोगों तक पहुंचे अफोर्डेबल रेट पे। कहीं ना कहीं रेट का डिस्कशन आपने नहीं करा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट विजन है, अफोर्डेबल मेडिसिन विद क्वालिटी शुड रीच आउट। सो दैट इज अ विजन। और इस बार IMICon, हर साल जब भी IMICon होता है तो हम अपने रिसर्च प्रोडक्ट्स, अपने इनोवेशन को डॉक्टर्स तक लेके जाते हैं, उनको बताते हैं, सो दैट वो मैसेज और वो जो फायदा है जो हम देख रहे हैं वो पेशेंट्स एट लास्ट तक पहुंचे।
और इस साल का IIM Icon भी उसी बेसिक थीम के ऊपर बेस्ड है। Thank you, sir, for putting this in front of us. I think everyone should know, all the audience and panelists should know कि आज अगर इंडिया में बहुत अफोर्डेबल मेडिकेशंस हैं और स्टिल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेडिकेशंस हैं, तो शायद वो सपना जो 70 साल पहले देखा गया था 1951 को, तो शायद उसका परिणाम है। अदरवाइज अगर आज भी हम एमएनसीज के हाथों में होते या एमएनसीज आज भी इंडिया में काम कर रही होती, तो शायद हम मेडिसिन ही अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये जो सपना दो पार्टनर्स ने देखा था, कैडिला केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद का, आई थिंक ये बहुत बड़ा इनका हाथ है कि हमको बहुत अफोर्डेबल मेडिकेशन मिल रही, बट नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। अगर हमारे प्लांट की हम बात करें तो USFDA से लेके ब्राजील और एनवीजा ब्राजील और UKMHRA साउथ अफ्रीकन MCC, सारे प्लांट हमारे उन सबसे अप्रूव्ड हैं। तो बेस्ट क्वालिटी मेडिकेशन हम दे रहे हैं, बट अफोर्डेबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या जो बाकी कंट्रीज में हैं, हम शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। So thank you for bringing this point, sir, in front of everyone. So I think, sir, one last question from my side. Any message for the youngsters as they're going to have their own turning point from tomorrow? तो देखिए, मेरा एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, ये एक्सपीरियंस कहिए कि लाइफ में हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, राइट। जब मैं भी स्टूडेंट था तो कई सारे फैकल्टीज आते थे, दे यूज्ड टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, बताते थे। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो उनकी लाइफ की स्टोरी है, जरूरी नहीं है वो आपकी लाइफ की स्टोरी हो, ठीक है। तो डेफिनेटली वी शुड गेट इंस्पायर्ड, वी शुड अंडरस्टैंड कि उनका सक्सेस का मंत्रा क्या है। बट एवरी इंडिविजुअल हैज अ इक्वल पोटेंशियल, सबके पास एक इक्वल मौका है और इक्वल पोटेंशियल है अपने आप को साबित करने का और आगे बढ़ने का। तो आप सब लोग मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए और अपनी जॉब या जो भी कार्य आप करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, और वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। दैट्स अ सिंपल मैसेज। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने अंदर बिलीव रखिए। लाइफ इज गुड, और हम सब लोग डेस्टिन्ड है अच्छा काम करने के लिए, अच्छा अचीव करने के लिए लाइफ। That's my message, and I will wish everyone should achieve whatever they are destined to achieve with all the success. Thank you so much, sir. I think we had Pradeep ji, I just had one please. question. I just wanted to know, as Abhishek sir said, that this year's objective is regarding medicines and an innovation in medicines, which would reach to the last person in the society. So, does it have any other objectives? IIMCon? So thank you for asking this question. In fact, IIM Icon का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, IIM Icon का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम एजुकेट करें अपने इनोवेशन को, इनोवेशन जो फील्ड में हो रहे हैं उसको डॉक्टर्स तक लेके जाएं। और डेफिनेटली साइंस ड्रिवन, वी आर अ साइंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे को डॉक्टर्स कैसे परसीव करते हैं उसमें IIM Icon का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दिस इज अ परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, and we want to be a scientific company, science driven company which offers scientific solution for the patient need. और IIM Icon इस साल भी उसको रीइटरेट करेगा, उस कॉन्सेप्ट को, उस परसेप्शन को रीबिल्ड करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। दिस इज अनदर मैसेज दैट वी ड्राइव एवरी ईयर, क्योंकि डॉक्टर्स के माइंड में व्हेन थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर ऑपरेटिंग, हाउ कैडिला इज डिफरेंट, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज IIM Icon. Definitely it is one of the differentiating factors, apart from the quality and the affordability and our sales team which are different. But इस concept को establish करने में, इस organization की perception building करने में IIM Icon का बहुत बड़ा role है, which we will continue to do so in this year as well. Thank you very much, sir, for this information. In fact, myself as well as I don't think the students also would have known about this icon if your talk would not have been organized today. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू भारती मैडम। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक बिजनेस एम्पायर सेटअप करने में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सेटअप करने में भी कितने सारे यूनिट्स लगते हैं, कि हाउ इट कैन रीच आउट टू द लास्ट मैन, एज मैडम हैज सेड, कि उसके लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कितने एवेन्यूज ओपन है।
बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अवेयरनेस क्रिएट करना, अल्टीमेटली इफ यू हैव डन इनोवेशन तो उसको एक अवेयर करना भी एक जरूरी है, नहीं तो वो इनोवेशन रहा नहीं, वो लोगों तक जब तक पहुंचा नहीं। तो सर मुझे जो आपका पूरा ओवरऑल वेबिनार में सबसे बेस्ट चीज लगी सर, विथ योर ह्यूमिलिटी you acknowledge the teachers for where you are today. So that is something which is actually a strong message for the present students also, all those who are listening, कि अगर आप guided light से हैं हमेशा, उससे पूरी लाइट से रोशन है आप, तो आपका सक्सेस तो है ही है, साथ में साथ ही चल रहा है, आपको पाना नहीं है, आप साथ ही उसके चल रहे हैं। तो ये आपकी जो मॉडेस्टी है, ये आपका जो फ्रैंक एक्सप्रेशन है, ये बहुत सल्यूट करने लायक है सर। और इसके साथ ही मैं अब इनवाइट करूंगी अभिनंदन सर को, जो बहुत समय से एडला से जुड़े हुए हैं और काफ़ी डिफरेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं और बहुत क्लोज रह चुके हैं डॉक्टर मोदी के साथ में, और अमरलाल मोदी सर के साथ में, इंद्रवदन भाई सर के साथ में भी रहे थे जब कैडिला में थे। तो उनके साथ भी हम सुनना चाहेंगे कि हाउ सक्सेस कैन बी डिटरमाइंड व्हेन इट कम्स टू कैडिला। See, I'll tell you, the leadership at Cadila always believe in sharing the success with their team. They never took the success with them. Dr. Modi's fundamental is, the success is my team. If the failure is there, it is mine. That is how he has developed the leaders. And that's how he has moved forward. When we are working with Chemical SBU or maybe at Apple Hospital, he always said that you go ahead. If we fail, it is my failure. Don't worry about it. But if the success is there, it is about you all. And then you must celebrate it. And that's how he has developed all the leaders in Cadila. अभिनंदन सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक्चुअली में, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि जब लीडर आपको कहता है कि आपकी फेलियर मेरी फेलियर है, मेरी फेलियर है बेसिकली, और सक्सेस जो हम सबकी है, जो कि अभिषेक सर ने भी राइटली उन्होंने भी यही कहा कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस इज व्हेन पीपल दे कम टुगेदर, देन दैट इज हाउ दे कैडलाइज। तो यहाँ पे मुझे बहुत ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैच है, सिंक है दोनों आज जो हैं लीडर्स के साथ में, अभिषेक सर हो, अभिनंदन सर हो। It's time now to invite Vyas sir, if you are not busy, would like to hear from you as well. Vyas sir. Yeah, thank you, Namrata madam. And yes, thank you, Abhishek sir. In fact, I was also not aware about when I heard about IM Icon, that what is that? And Bharti ma'am raised the right question. तो पता चल गया कि क्या है क्या नहीं IM Icon. And success का आपका जो मापदंड है, I exactly follow the same thing. कि at the end of the day, if I just introspect myself, कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ, और मैंने क्या किया, क्यों किया, और क्या नहीं करना चाहिए आगे के लिए. That is what is success for me, and I also believe in the same way, and I follow the same thing. So thank you very much for your such a wonderful session, and Pradeep ji, thank you again for bringing such a nice person to us, and we wish to have him over here offline lectures. My pleasure, sir. Thank you. अभिषेक सर, आपने जब कहा कि जो भी आपकी सक्सेस है वो मेजरेबल होनी चाहिए, कोई ना कोई एक यार्ड स्टिक होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम मेजर करें कि वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट, और अगर डेली बेसिस पे होए तो और सिंप्लीफाई कर दिया आपने कि डेली बेसिस पे मैं बताऊं कि मैंने आज ये टारगेट सेट किया था और सब में मेरे वो कंप्लीट हुए कि नहीं, तो दिस इज हाउ आई मेजर्ड एंड रेट माई सेल्फ ऑन सक्सेस, तो ये बहुत ही एक सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया है। Thank you Vyas sir for your this thing also. Pradeep sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? Already I have shared the excerpts of today's webinar. If you check your mailbox, everyone already have sent as every time I do. So my students will also get whatever they are listening right now. After that, there should be something for them. They should be able to refer. They should be able to read after this. So as a part of that, as every time I do, so this time I also have sent the excerpts of that session. So I think if any corrections I'd like to make, definitely like to make. But this was wonderful, sir. So दो बहुत बड़े हमारे initiatives हैं कैडिला के,
और सर उससे जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि he led from the front and has seen the success. IM Icon and Doc Excel. So आज हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चला, हमारे पैनलिस्ट को भी पता चला क्या है, क्योंकि मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि उसके बारे में बता पाऊँ. So it's always good to listen from the horse's mouth. So जैसे अभिनंदन जी ने एकदम सादगी से बोला कि सक्सेस इज ऑल योर्स एंड फेलियर इज ऑल माइन, दैट्स हाउ द लीडर्स बिलीव. सो आई थिंक सर भी वैसे ही करते हैं. तो सर हमेशा जब भी होता है सो मिस्टर रवि या मिस्टर विजेंद्र या मिस्टर पार्थिव को बोलते हैं, और सर हमेशा हमें पीछे से ही बैक में ही रह के सारा काम करते हैं, कभी भी लाइमलाइट पसंद नहीं करते. So I think very much visible. Thank you so much, sir, for accepting at a very short notice my invitation for this. So, sir, मेरा तो योगदान कम है इसमें. हमारे कैडिला में इतने अच्छे लोग हैं कि अगर मैं शॉर्ट नोटिस में बोलूं तो लोग मान जाते हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं है सर कि इस तरह से. So I'm so helped. इनफैक्ट मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी चाहता था कि कुछ लोग जिन्होंने लाइफ का वो तजुर्बा लिया है मुझे एजुकेट करे और मैं कुछ ना कुछ सीख पाऊँ. तो जब हम कॉलेज में थे तो मेरे टीचर्स हमेशा वही बात बार बार आती है कि वो सिखाते हैं कि जब जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ आप अचीव करो तो उसको लोगों को बांटो, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि लाइफ कैसी है. लाइफ इज अ जर्नी और हम सब सीखते हैं रास्ते में. तो इसलिए प्रदीप मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता था और इसी वजह से आई रियली वांटेड टू इंटरेक्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल. आप सब लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी और मौका दिया बात करने का, एंड आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा स्टूडेंट्स को. सर्टेनली सर, बिल्कुल होगा. मैडम कुछ बोलना चाह रहे थे मैडम. No, it was nice. We came to learn of something new. Yes. And we hope that Pradeep ji brings these all new dimensions of Kedila every time to us every Friday. सच कहा कपिला सर, आपने जो बोला कि तजुर्बे से भी सीखते हैं, किताबों से भी हम सिखाते हैं लेकिन तजुर्बे से भी सीखते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा आज स्टूडेंट्स के लिए मैसेज गया है कि एक मैसेज होता है, एक लर्निंग होती है बुक्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी कर रहा है, और आयु और कैडिला ही जो है मिलके एक यूनिक जो है लेके आया है वेबिनार सीरीज टर्निंग पॉइंट, जिसमें तजुर्बे के थ्रू भी सिखाया जाता है. तो सक्सेस तो यहीं से शुरुआत हो ही जाती है, साथ साथ ही चल रही है. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, धरती गांधी. शी इज अगेन MSc स्टूडेंट फॉर टेंडरिंग vote of thanks. Dharti, you can unmute yourself. I hope I am audible to all. Yes, Dharti. Hello everyone, myself Gandhi Dharti from MSc Microbiology. It's my pleasure to being here for this brilliant webinar on the interesting and encouraging topic success, which is given by Abhishek Kapila sir. You have explained I am icon is very beautiful and also give very neat and clear definition of success. That is, आपने कुछ सोचा हो और आप पूरी मेहनत से वो काम करें तो कुछ हासिल होगा ही, वही सक्सेस है. इज वेरी इंस्पायरिंग. इवन द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, द हाईलाइटेड वर्ड ओवर कॉन्फिडेंस. आई मस्ट से दिस स्टोरी इज वेरी मच रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस लाइफ एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट दैट ओनली confidence should be in our mind, not overconfidence. Your plan is very much interesting and unique. I must appreciate for it. Thank you so much, sir, for your best wishes, and also thankful for your time and inspiring speech from bottom of our heart, and also thankful to Indrasil University too for opportunity. Thank you so much. Wonderful, Dharti, wonderful. Superb. Thank you, sir. देखिए सर, You ये put your heart students का out. expression था. हाँ. You put your heart out. Yes. She is speaking from the heart. ये सिंप्लिसिटी जो है ना, ये सिर्फ दिस सिंप्लिसिटी शुड रिमेन. यही रियल एसेंस है लाइफ का. सिंप्लिसिटी, यू शुड टॉक फ्रॉम द हार्ट. और लंबे समय तक ये बहुत बड़ी वर्च्यू है जो हमारे साथ रहनी चाहिए. अगेन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, एंड वो कॉलेज की बात बार बार याद आती है. दैट फ्रेशनेस एंड दैट सिंप्लिसिटी शुड ऑलवेज रिमेन विद अस. So thank you all of you. I am really thankful that आप सब लोगों ने मौका दिया. Thank you so much, sir. देवर्ष ने भी express किया है कि it was very helpful for sir. It was a wonderful session, and they have thanked. In fact, he has represented all the students who have been, attending this webinar. So with this, I thank Pradeep sir, Abhinand sir, Vyas sir, Bharti madam, and my colleague Dr. Sumit, all the students. And on their behalf, I again thank to Abhishek sir
for being with us and sharing his success mantra. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Thank you.